Hello everyone. Today's topic is Descartes philosophy, the mind-body dualism, Cartesian dualism और psychophysical dualism. डेकार्त दर्शन में मन शरीर द्वैतवाद की क्या धारणा है वो आज हम पढ़ेंगे. इसे कार्टेशियन द्वैतवाद भी कहते हैं या मनोभौतिक द्वैतवाद भी कहते हैं. So a small introduction of René Descartes. René Descartes was born on March 31st, 1596, in a small town of La Haye, France. He was a French mathematician, philosopher, and physiologist. He is the father of modern philosophy, and Descartes is best known for his theory of mind-body dualism. Descartes को अपने शरीर मन द्वैतवाद की धारणा के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क जो डेकार्ट ने बुक पब्लिश की जो उनका काम था. सो by the end of the 1620s, Descartes completed the rules for the direction of mind, his first major work. हालांकि ये तब तक पब्लिश नहीं हुआ जब तक ये काम उनके लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुआ, ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था. देन सेकेंड, in 1633, he had finished La Monde, the Word, a book on physics that presented the world as essentially matter in motion. Then, Discourse on Method. So, in 1637, he brought out Discourse on Method of rightly conducting one's reason and seeking the truth in science. Then, in August 1641, he brought out his masterpiece, Meditation on First Philosophy. Then, in 1644, he published Principle of Philosophy, and the last work published in his lifetime was Passion of the Soul in 1649. ये बुक्स बहुत फेमस हैं डेकार्ट फिलॉसफी में, और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बुक्स का नाम आता है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सी बुक डेकार्ट के थ्रू लिखी गई है. तो आप ये नाम याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा. देन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग माइंड बॉडी डुअलिज्म इन डेकार्ट फिलॉसफी, तो फर्स्टली द क्वेश्चन इज व्हाट इज डुअलिज्म. द्वैतवाद क्या है? So, the term dualism has a variety of uses in the history of thought. In general, the idea is that there are two fundamental kinds or category of things or principle. तो साधारणतः विचार यह है कि द्वैतवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें दो प्रकार के द्रव्य या सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, in theology, a dualist is someone who believes that good and evil or God and the devil are independent and more or less equal force in the world. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था. तो कहीं एग्जाम्पल है, लेकिन कहीं भी एक ऐसा सिद्धांत जहाँ पे दो स्वतंत्र द्रव्यों की बात हो रही है तो वो सिद्धांत द्वैतवाद से संबंधित होगा. डुअलिज्म कॉन्ट्रास्ट विथ मोनिज्म. मोनिज्म का मतलब होता है एक तत्ववाद या एकवाद, इसलिए कहा कि ये इसके विपरीत है. जहाँ डुअलिज्म द्वैतवाद की दो तत्वों की बात करता है, वहीं मोनिज्म एक तत्व की बात करता है. सो मोनिज्म इज अ थियोरी दैट देयर इज ओनली वन फंडामेंटल काइंड ऑफ थिंग्स और प्रिंसिपल. In the philosophy of mind, dualism is the theory that mental and the physical, or mind and body, are
in some sense different kinds of thing. तो फिलॉसफी ऑफ माइंड में ये माना जाता है कि द्वैतवाद की अगर हम बात करें तो उसका सिद्धांत ये है कि माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर दो स्वतंत्र द्रव्य हैं, ये द्वैतवाद है. Now, mind-body dualism in Descartes philosophy. The issue of mind-body dualism is as old as the ancient Greek philosophy. This problem can be seen in the Pythagoreans as well as the philosophy of Socratic Platonism, but it could not get a prominent position. In the modern period, it is Descartes who brought the old problem regarding mind body dualism in a new way. तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो समस्या थी मन शरीर द्वैतवाद की, ये बहुत पुरानी समस्या थी जो प्राचीन ग्रीक के टाइम से चली आ रही थी, लेकिन देकार्त ने इसको बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया और एक नए तरीके से इसको प्रस्तुत किया. सो फर्दर he defines substance. This is a definition of substance, or we can say a best explanation about substance given by Descartes: a thing which exists in such a way as to depend on no other things for its existence. एक ऐसा द्रव्य जो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी तरीके से दूसरे पर निर्भर नहीं होता. He holds the view that mind and body are two independent substance. तो यही उसका द्वैतवाद है कि माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर दो स्वतंत्र द्रव्य हैं. Descartes claims that mind and body are substance of different kinds. He infers the existence of mind as a thinking substance whose character is thought. वो माइंड को कैसे लिखते हैं कि एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिसका कैरेक्टर क्या है, सोच, विचार. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना. इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. Unlike the mind, the body is an thing. So we can say that Cartesian dualism is the dualism of substance. द्रव्यों का द्वैतवाद. तो हम कह सकते हैं कि जो कांट का द्रव्यवाद है वो द्वैतवाद है, वो कैसा है, द्रव्यों का द्वैतवाद है. वो दो द्रव्य बताते हैं, एक मन और एक शरीर. Okay. Further, according to Descartes, there are two main categories of substance: mental substance and physical substance. मानसिक द्रव्य या भौतिक और भौतिक द्रव्य. तो मेंटल सब्सटेंस में माइंड आ जाएगा और फिजिकल सब्सटेंस में बॉडी आ जाएगी. In the context of substance, Descartes speak about attributes and modes. दो चीज़ों की बात करते हैं, एक attributes and mode. अब ये दो चीज़ क्या हैं? So, an attribute is what makes a substance the kind of substance it is. कि जिस तरह का वो सब्सटेंस है उसको वैसा बनाना वो उसका एट्रीब्यूट है. एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट ऑफ फिजिकल सब्सटेंस और बॉडी इज स्पेशल एक्सटेंशन, कि वो स्पेस लेता है, वो एक्सटेंड होता है. एंड एट्रीब्यूट ऑफ मेंटल सब्सटेंस और माइंड इज थॉट विच इज नॉन स्पेशल, क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है. माइंड इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन कि हम उसे देख सकें, हम उसे स्मेल कर सकें, हम अपने सेंसेस के थ्रू नहीं. बॉडी को हम देख सकते हैं, वो मटेरियल है. सो ये तो हो गया एट्रीब्यूट. मोड क्या है?
A mode can be seen as specifying the attribute's possible value. These specifications are related to properties in the ordinary sense. For example, modes of extension are फॉर्म, लोकेशन, टेक्सचर, वेट एक्सेट्रा। कि जैसे बॉडी है तो बॉडी की एक फॉर्म है, वो एक जगह लोकेट है, उसका एक टेक्सचर है, वेट है ना, कलर है। तो ये हो गए मोड्स ऑफ एक्सटेंशन। द मोड्स ऑफ थॉट आर इमेज, इमोशन, बिलीव, डिजायर, थिंकिंग, विलिंग, ये सब हो गए मोड्स ऑफ थॉट। तो ये माइंड से रिलेटेड है और modes of extension body से related है। and somewhere modes of extension is public, क्योंकि वो लोगों की नज़र में आते हैं, वो दिखते हैं। and modes of thought are private। then thus minds are capable of conscious acts such as thinking, doubting, willing, as I said, and minds are not extended and so don't take up space। क्योंकि वो extended thing नहीं है इसलिए वो space नहीं लेते। they are not made up of parts and cannot be divided। कि वो पार्ट से, बहुत सारे पार्ट से मिलकर ना बना है, ना उसे आगे विभाजित किया जा सकता है। ये सारी जो क्वालिटी होती हैं ये मटेरियल की क्वालिटी है। So on the other side, bodies are extended, occupy space and can be divided into more elementary particles। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, माइंड की और बॉडी की। बॉडीज आर नॉट कॉन्शियस and as simply moved by mechanical force acting on them। Descartes concludes that mind is a separate substance from the body because it does not need the body in order to exist or to be understood। Furthermore, the mind and the body are separate substance because they have completely different attributes। तो आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही चीज जो निकल कर आ रही है वो क्या, कि मन और शरीर स्वतंत्र द्रव्य हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते अपने अस्तित्व के लिए। The picture that emerges that human beings are made up of two different kinds of reality somehow linked together। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो दो तरह के सब्सटेंस से मिलकर बनी है, जिसमें माइंड भी है और बॉडी भी है। सो ऑन द वन हैंड वी हैव बॉडी and are the part of the physical world। The body is a machine made out of flesh and bones। ये हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर एलिमेंट्री बॉडी है, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और ऑन द अदर हैंड, according to Descartes, mind, which is identical to your soul or consciousness, that is the real you। If you lost for example, if you lose an arm or any other organ of your body mechanism is impaired, but you are still as complete a person as before। तो कहते हैं कि जो माइंड है, जो उसका जो अस्तित्व है, आप उसे कॉन्शियसनेस कहिए या आप उसे सोल कहिए या आप उसे सेल्फ कीजिए। आप ये याद रखिएगा कि डेकार्ट के फिलॉसफी में ये वर्ड एक तरह से सिनोनिम्स की तरह यूज़ किए गए हैं, लेकिन कई लोग इनमें डिफरेंस करते हैं। जब हम दूसरे लोगों की फिलॉसफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन इसमें डिफरेंस करता है। बट डेकार्ट के फिलॉसफी में ये सेम है। तभी उन्होंने कहा कि अगर बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो इम्पेयर हो सकती है, लेकिन आप एज अ पर्सन जो थे आप वही रहेंगे, क्योंकि जो माइंड है वही आपके पर्सनहुड को क्रिएट करता है। सो डेकार्ट्स पोजीशन हियर इज अ काइंड ऑफ डुअलिज्म। More specifically, it is important, it is metaphysical dualism, आदि भौतिक द्वैतवाद। की डेकार्ट के दर्शन में जिस द्वैतवाद की बात हो रही है वो कौन सा है? वो आदि भौतिक है। आदि भौतिक क्यों?
क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो डुअलिज्म है, ये जो तत्व हैं, इनके बीच जो क्रिया होती है, जो लिंक बनता है, वो कैसे बनता है। So, metaphysical dualism refers to any theory that claims that there are two ultimate and irreducible kinds of reality. आदि भौतिक द्वैतवाद ये कहता है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो ऐसे दो द्रव्यों को मानता है जो अल्टीमेट हैं, जो एक दूसरे में बदले नहीं जा सकते, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है. Now, the second important theory in Descartes philosophy, that is interactionism, अंतःक्रियावाद. ये क्या है? ये इसी थ्योरी से जुड़ी है जो अभी हम पढ़ते हुए आए हैं, माइंड बॉडी द्वैतवाद, माइंड बॉडी dualism. So further, Descartes says that mind and body look very different, but there seems to be mutual influence. कि वो दिखते तो हैं अलग, बहुत अलग, बट उनमें एक आंतरिक क्रिया, एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव होता है एक दूसरे का. कैसे? द बॉडी कैजुअली इफेक्ट द माइंड बिकॉज द माइंड रिसीव सिग्नल्स from your body. The mind casually affect the body because the body respond to your plans. It is called interactionism. कि माइंड और बॉडी जिस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, उस क्रिया को, उस एक्टिविटी को इंटरेक्शनिज्म कहा जाता है. एंड इट इज़ अ थियोरी दैट देयर आर टू एंटिटीज, माइंड एंड बॉडी, each of which can have an effect on other. कि ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. माइंड इज कैपेबल, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, सो माइंड इज कैपेबल ऑफ पुटिंग बॉडी इनटू मोशन and vice versa. If I am physically uncomfortable, my mind does not work very effectively. Similarly, if I am worried or mentally distressed, my stomach tensed up. तो अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम है, कुछ टेंशन है, तो वो बॉडी में इफेक्ट करता है, और बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो माइंड में इफेक्ट करता है. The question is how is it possible for a mental substance and a physical substance to interact? अब सवाल ये है कि ये दो अलग प्रकार के जो द्रव्य हैं, इनके बीच क्रिया होती कैसे है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक जो सब्सटेंस है वो मेंटल है, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट है, वो फिजिकल है. सो हाउ एक्यूरेट इज डेकार्ट्स क्लेम दैट माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट? हाउ कुड अ फिजिकल इवेंट प्रोड्यूस अ चेंज इन अ इमटेरियल माइंड? सो in answer, in his popular work titled Meditation, Descartes holds that mind and body are distinct substance which interact. उसमें उन्होंने बताया कि वो इंटरेक्ट करते हैं. अब सवाल ये है कि वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है बाय पीनियल ग्लैंड. नाउ व्हाट इज पीनियल ग्लैंड? According to Descartes, casual interaction between the mind and body occurs in the pineal gland. It is located at the base of our brain. तो ये इसकी लोकेशन है कि वो कहाँ पर है, जो वो छोटी सी जो पीनियल ग्लैंड है वो कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन. So Descartes says that extremely fine particles are flowing around the pineal gland, which is the cause of movement in mind in various ways, and this motion of the gland is the cause of conscious state of the mind. Conversely, the mind can cause the gland to move in various ways. So this interaction cannot be explained through the law of physics, because this will mean that we are trying to reduce the mind to the brain. वो कहते हैं कि देखिए कि यहाँ पे ब्रेन, जो पीनियल ग्लैंड है, उसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो प्रभावित करते हैं, जो माइंड को प्रभावित करते हैं कि वो बॉडी
से जाके लिंक करे और वो जो बॉडी को प्रभावित करते हैं कि वो माइंड से मैसेज रिसीव करे। इस तरह से इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता रहता है, बट इट इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लॉ ऑफ फिजिक्स से रिलेट कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम माइंड को ब्रेन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी बोथ आर separate or independent substance according to Descartes. Okay. In other words, he thought the pineal gland was affected by vital spirit. अगर दूसरी तरीके से मैं ये एक्सप्लेनेशन दूँ, हालांकि एक्सप्लेनेशन वही है बट लैंग्वेज का फ़र्क है। सो pineal gland was affected by vital spirit, and through this intermediary, the soul could alter the motion in the brain, which then could affect the body and vice versa. So, thus, Descartes favors the divine interpretation rather than scientific one. तो इस तरह से जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं डेकार्ट, वो डिवाइन इंटरप्रिटेशन है, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है, रादर देन साइंटिफिक। Here, the justification for the existence of two substances is based on his belief in God's infallibility. God makes the interaction possible. डेकार्ट का ऐसा मानना है कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये गॉड की वजह से पॉसिबल है, एंड इट इज But Descartes' interactionism fails to explain how physical matter influences and is influenced by of spiritual substance. लेकिन ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन डेकार्ट देते हैं इसमें वो सक्सेस नहीं होते, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर पीनियल ग्लैंड के थ्रू भी हो रहा है, कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन भी सफिशिएंट नहीं है। सो although Descartes' analysis of mind-body dualism is accepted by most of the philosopher, psychologist, religious teacher, and even by the common people, but in spite of this, his theory has to face a lot of criticism. इसलिए यही कारण है कि बहुत लोग इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हमें इस थ्योरी के अगेंस्ट मिलती हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस गिलबर्ट राइल्स philosophy or the thought named by category mistake, a critique of कार्टेशियन ड्यूअलिज्म। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको गिलबर्ट राइल किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं वो बहुत अच्छा है, और ये ऑनर्स के सिलेबस में भी है, और काफ़ी बार आपको आगे भी आप जब पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी तो आपको ये ज़रूर मिलेगा कि अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं डेकार्ट का डुअलिज्म तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिटिसिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी वो भी आपको लिखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।